Jai Vigyan everyone, how are you all? Hope all of you are enjoying and safe at your homes. Chaliye, as we know, today we have to start our last chapter of the syllabus, that is chapter number 9, India and the UNO. But before starting, as usual, we all have to recite the shloka. So very fast we will start the shloka. सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते. Om Shanti Shanti Shanti. Hey everyone, chaliye. As you know, today we have to start the last chapter. But in this series, we have already discussed chapter number 7 and chapter number 8, that is about the birth of UN and the work of UN, how the UN was born and how it works, that we have already discussed. Now in this chapter, we have to discuss about India and the UNO. That means the contribution of India in UNO and the contribution of UN in India's progress, that we have to discuss in this chapter. One more thing that we have to discuss is about NAM. NAM, that means non-aligned movement, that was started by India. And what is NAM, that we will discuss in chapter only. Okay, so we'll start the chapter. कि इंडिया के डेवलपमेंट में यूएनओ का क्या कंट्रीब्यूशन है और यूएनओ की वर्किंग में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट वी विल स्टडी. एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर is about NAM, that is non-aligned movement, that we will discuss. Okay, so first of all we will start very fast with gear up. See, here you have given some names and their logos. You need to match the picture or name with the logo. First is UNICEF, that is being already done for you. Second, ILO. So it is been very clear कि ILO का logo कौन सा है. The first one is ILO. IMF, that is Indian Monetary Fund, the second one. UNESCO is the third one. So this is a gear up. Okay, as all we know that India is the founder member of UNO. इंडिया यूएनओ का एक फाउंडर मेंबर है बिकॉज इंडिया साइन द चार्टर ऑफ यूएनओ ऑन 30th अक्टूबर 1945. ये 24 अक्टूबर 1945 को ऑर्गेनाइजेशन बॉर्न हुई थी और इंडिया ने इसका चार्टर 30th अक्टूबर 1945 को साइन किया था. दैट्स वाई इंडिया इज ऑल्सो बीइंग कंसीडर एज द फाउंडर मेंबर ऑफ यूएनओ. Okay, let's read what is given over here. India is one of the founding member of the UN. As a founding member, India signed the UN Charter on 30th October 1945. India has played a key role in promoting world peace and security. Now we will discuss about the role of India in promoting वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है. इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशंस. फर्स्ट, इंडिया हैज सपोर्टेड द कॉज ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज. इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है कि जितनी भी अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको डेवलप करना चाहिए, उनकी प्रोग्रेस में, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प होनी चाहिए और हमेशा हेल्प की भी है विद यूएनओ. क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यूएनओ का क्या काम है, जो भी बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें हेल्प करना टू बीइंग डेवलप्ड. एंड इंडिया ने हमेशा यूएन के इस वर्क में उसका साथ दिया है. सेकेंड, India opposed the policy of racial discrimination in South Africa. Racial discrimination was popularly known as apartheid. When apartheid was abolished in South Africa, India re-established its relation with South Africa. That too we have already discussed in our chapter number 5 about racial discrimination.
हमने पढ़ा था ना कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉलो किया जाता था, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड अपार्थेड। इसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में अपार्थेड कहा जाता है। एंड इंडिया वॉज ऑलवेज अगेंस्ट विद दिस पॉलिसी। और जब साउथ अफ्रीका में इंडिया की हेल्प से इस पॉलिसी को अबॉलिश किया गया, देन विद दैट इंडिया री एस्टेब्लिश इट्स रिलेशनशिप विद साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन द UN एड मिशंस। UN के जितने भी मिशंस होते हैं, हमेशा उन सभी मिशंस में इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। कभी ऐसा नहीं था कि इंडिया ने UN के किसी मिशन में पार्टिसिपेट ना किया हो। UN ने वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए, वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए कोई भी वर्क किया है, मिशन रहा है अगर UN का, तो इंडिया हमेशा उसका एक एक्टिव पार्ट रहा है। ओके, इंडिया हैज़ बीन एक्टिव इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। इंडिया ने हमेशा वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखा है। जैसे हमने भी पढ़ा है कितनी बार कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती रहती है, या जैसे भी इंडिया चाइना का भी वॉर चलता है, बट इंडिया ने कभी भी किसी फाइट की शुरुआत नहीं की है। नेवर इट स्टार्टेड। हाँ, लेकिन अगर सामने से फाइट होती है तो इंडिया को ज़रूर कवर अप करना पड़ता है, अदरवाइज इंडिया नेवर स्टार्टेड द फाइट विद एनी ऑफ द कंट्री फर्स्ट। तो जो UN का मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, तो इंडिया ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, हमेशा UN का साथ दिया है और वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखने में हमेशा हेल्प की है। India has been a part of the UN peacekeeping force in many countries. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स होती है विच कैन बी सेंट इन एनी एरिया और एनी कंट्री वेर एवर इट इज़ नीडेड। तो इंडिया उस UN की पीस कीपिंग फोर्स का हमेशा ही एक हिस्सा रहा है। जब भी UN की पीस कीपिंग फोर्स की नीड होती है कहीं पर भी, तो इंडिया उसमें एक्टिवली पार्ट लेता है। India has always supported the use of nuclear power for peaceful purpose. As we know, nuclear power, it is very destructive. न्यूक्लियर पावर, एटम बम्स कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, हमने लास्ट पढ़ा भी था इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ 1945 में, तो अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम्स गिराए थे, तो वो कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। अभी अगर थर्ड वॉर का सिचुएशन आता है तो क्या होगा, सभी कंट्रीज आपस में एक दूसरे पर एटम बम्स गिराएंगी, तो क्या होगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इंडिया ऑलवेज इन फेवर टू यूज द न्यूक्लियर पावर इन पीसफुल पर्पस और फॉर द गुड पर्पस। हम न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो इंडिया हमेशा इसी सपोर्ट में रहा है कि न्यूक्लियर पावर का जो है वो गुड यूज होना चाहिए, पीसफुल यूज होना चाहिए, उससे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नहीं बनने चाहिए, उसका यूज दूसरी चीजों में, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया हैज सपोर्टेड द यूज ऑफ यूरेनियम फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज important for development. Yes, uranium, as we have already discussed about the nuclear power, which uranium is the part of that. तो यूरेनियम का यूज़ करके एटम बम्स बनाए जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, बट इंडिया ने हमेशा UN को सपोर्ट किया है कि यूरेनियम का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में करना चाहिए, ताकि किसी भी कंट्री को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, ना कि उससे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए जाने चाहिए। Next, India is an active participant in UN agencies like UNESCO, WHO, FAO and ILO. तो UNO की जो ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज का हमेशा से इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। इंडिया ने हमेशा इन एजेंसीज के वर्क में एक्टिवली पार्ट किया है। जब भी इन एजेंसीज ने किसी भी कंट्री में कोई वर्क किया है, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, इंडिया ने हमेशा वहाँ पर हेल्प की है। सो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फंक्शंस ऑफ UN। ये सब जो हमने अभी पढ़ा
वो ये था कि इंडिया ने यूएन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूएन्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज प्रोग्रेस, कि इंडिया की प्रोग्रेस में, इंडिया की डेवलपमेंट में यूएन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. फर्स्ट, the UN's most important contribution to India has been its support to the policy of non-alignment. Yes, UN ने इंडिया की जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट, नैम की पॉलिसी, विच वी आर गोइंग टू बी स्टडी आफ्टर दिस, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नैम. तो इंडिया ने जो नैम की पॉलिसी स्टार्ट की थी, यूएन ने उसे सपोर्ट करके इंडिया की प्रोग्रेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है. दैट वी विल डिस्कस इन later on in this chapter, that what is NAM, then you will be realize that how it is important. Sorry. Next, the WHO, World Health Organization, has helped India fight against major diseases and health problems like HIV, AIDS and tuberculosis. जो ये कुछ बीमारियां हैं, जैसे हमने पढ़ा था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? वर्ल्ड की हेल्थ का ध्यान रखना. अगर कोई भी डिसीज है तो उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, उसे क्योर करने के नए नए तरीके बताना और उसे क्योर करने की कोशिश करना. तो इंडिया में जो ये कुछ डेंजरस डिसीज हो गई थी, जैसे कि HIV, एड्स और ट्यूबरकुलोसिस, तो इन सारी डिसीजेस को रिजॉल्व करने में यूएन ने इंडिया की बहुत हेल्प की. नेक्स्ट, द FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, has helped to change the desert area of Rajasthan into a fertile region. As we know, Rajasthan is a desert area. तो FAO ने बहुत हेल्प की है राजस्थान के उस अनफर्टाइल और डेजर्ट एरिया को फर्टाइल रीजन में कन्वर्ट करने में. इट हैज़ हेल्प टू इम्प्रूव फार्मिंग मेथड्स. उसने फार्मिंग के मेथड्स को इम्प्रूव किया है. न्यू टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट विद द हेल्प फ्रॉम द FAO. इंडिया के साइंटिस्ट ने जो कुछ नई टेक्निक्स फाइंड आउट की है फार्मिंग की, सीड्स की या फर्टिलाइजर्स की, वो किसकी हेल्प से की हैं? विद द हेल्प ऑफ FAO की हेल्प से की है. नेक्स्ट, द यूनिसेफ सपोर्ट्स वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स. इंडिया में जो वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए जो एम्पावरमेंट, उनकी पावर को मतलब उन्हें इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है. इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इन इंडिया. जगह जगह पर, छोटे छोटे गाँव में जहाँ पर स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. आंगनवाड़ी दैट मीन्स कि एक छोटे से कमरे में या ओपन एरिया में स्कूल रन करना, दैट इज कॉल्ड आंगनवाड़ी, जहाँ पर बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है. जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें बेसिक सिखाया जाता है, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है. तो वो सब आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स कहलाते हैं. तो इंडिया में जगह जगह पर आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स जो रन किए जाते हैं, वो यूनिसेफ की हेल्प से किए जाते हैं. एज वी नो, यूनिसेफ ऑलवेज वर्क फॉर द चिल्ड्रंस एंड वुमेन. नेक्स्ट, World Bank supports basic infrastructure development and irrigation projects like canals, river links, roads, etc. इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने हेल्प प्रोवाइड की है, जैसे इरिगेशन प्रोग्राम्स के लिए, कैनाल्स बनाने के लिए, रिवर लिंक्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए हमेशा वर्ल्ड बैंक ने हेल्प प्रोवाइड की है. While IMF provides financial support and currency exchange facilities, और IMF ने फाइनेंशियल सपोर्ट और करेंसी एक्सचेंज फैसिलिटीज़ में हमेशा इंडिया की हेल्प की है. So that is the contribution of UN in India's progress. Now we will discuss about the most important topic of the chapter, that is NAM. NAM.
origin of NAM. NAM, that means non-aligned movement. Non, नहीं. Aligned मतलब किसी के साथ मिलना. Align होना, किसी के साथ मिलना. और movement, it's a movement. तो what is the actual meaning of non-aligned movement? कि non, किसी के साथ भी ना जुड़ना. That was the movement which was started by the first Prime Minister of India was पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने ये NAM की पॉलिसी स्टार्ट की थी. Now, what is NAM and how it was started? But before we will read what is given over here. After the Second World War, USA and USSR, that also can be called Russia, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, that was Soviet Union, USSR और रशिया, बिकॉज रशिया जो थी वो USSR की या सोवियत यूनियन की मेन इम्पॉर्टेंट पावरफुल कंट्री थी. अपार्ट फ्रॉम रशिया बहुत सारी कंट्रीज थी, दे वर ऑल टुगेदर नोन एज USSR और द सोवियत यूनियन. Sorry. So after the Second World War, USA and USSR emerged as the two major world powers. Second World War के बाद USA और रशिया ये वर्ल्ड की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर्स के रूप में emerge हुई या फेमस हुई. These two countries formed two rival groups. ये दोनों ही कंट्रीज ने दो राइवल ग्रुप्स फॉर्म किए. These groups were formed mainly on the basis of their military pacts. वो उनकी मिलिट्री पावर के बेसिस पर फॉर्म किए गए थे. As a result, there was a danger of another world war. तो इसकी वजह से एज बिकॉज कि पूरा वर्ल्ड लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक यूएसए वाला, एक यूएसएसआर रशिया वाला. तो कुछ कंट्रीज थी वो यूएसए के साथ ज्वाइन हो गई, कुछ कंट्रीज थी वो रशिया के साथ ज्वाइन हो गई. तो एक तरीके से ये क्या था, थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अराइज हो गई थी. Many countries in Asia and Africa were becoming independent at that time. हमने पढ़ा था ना ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में. तो विद द हेल्प ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल बहुत सारी कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका की जो जस्ट देन फ्री हुई थी बाकी की कंट्रीज से, कॉलोनीज से फ्री हुई थी. These newly independent countries were very weak and poor, and India was also one such country. ये सारी जो कंट्रीज थी वो बहुत वीक और पुअर थी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो वो बहुत ज़्यादा वीक थी. इंडिया भी ऐसी ही एक कंट्री थी बिकॉज इंडिया ऑल्सो अटेन इट्स फ्रीडम इन 1947. सो बोथ दीज ग्रुप्स, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दोनों ही ग्रुप चाहते थे कि ये जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है वो उनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं. बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि इन दोनों ही ग्रुप के साथ ज्वाइन होना, चाहे यूएसए और यूएसएसआर, किसी भी एक ग्रुप के साथ ज्वाइन होना, इट्स लाइक अनदर स्लेवरी. अभी अभी तो हम ब्रिटिशर से फ्री हुए थे, अगर हम यूएसए को ज्वाइन करें या यूएसएसआर को ज्वाइन करें तो दैट वाज लाइक अगेन सेम थिंग, हम वापस से किसी के कंट्रोल में आ जा रहे थे. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की विच वाज नेम्ड एज NAM, दैट मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हम किसी भी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं होना चाहते, जुड़ना नहीं चाहते. वी वॉन्ट टू लीव सेपरेट आउट ऑफ दीज ग्रुप्स. हम ये ग्रुप वॉर में ऐड नहीं होना चाहते, हम इस ग्रुप वॉर से अलग रहना चाहते हैं. सो दिस इज हाउ द पॉलिसी ऑफ NAM was started. Let's discuss. The major world powers wanted these newly independent countries to join their groups. तो जो ये पावर्स थी यूएसए और रशिया, ये चाहती थी कि ये सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है वो उनके साथ ज्वाइन हो जाए. Many countries of the world joined the group led by USA और रशिया.
कुछ कंट्रीज तो उनके साथ ज्वाइन हो भी गए थे, कुछ रशिया के साथ, कुछ यूएसए के साथ, टू प्रोटेक्ट देयर इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए. India realized that such an alignment with any group is another kind of slavery. इंडिया ने ये रियलाइज किया कि हम किसी भी ग्रुप के साथ अगर मर्ज होते हैं, चाहे यूएसए या यूएसएसआर, इट्स लाइक अनदर काइंड ऑफ स्लेवरी. अभी अभी तो हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से फ्री हुए हैं. अभी अगर हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो हम वापस किसी और के कंट्रोल में हो जाते हैं. नाउ इट इज दैट यूएसए और यूएसएसआर, या तो वो यूएसए होगा या यूएसएसआर होगा. But India don't want this. So they have started a new policy, NAM. Therefore, India decided not to be aligned with any group. इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि we will not align with any group. हम इन दोनों में से किसी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं होंगे. The first Prime Minister of India, पंडित जवाहरलाल नेहरू, proposed the policy of non-alignment. हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू जी, उन्होंने इस पॉलिसी को सबसे पहले प्रपोज किया था, सबसे पहले इसका स्टार्टअप किया था. ही वॉज सपोर्टेड बाय प्रेसिडेंट क्वाम निक्रुमा ऑफ घाना, प्रेसिडेंट गमल अब्दल नसार ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया एंड प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया. तो ये बाकी के 4 कंट्रीज थे जिन्होंने इंडिया की इस पॉलिसी को सपोर्ट किया था. दैट इज घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया. ये 4 वो कंट्रीज थे जिन्होंने इंडिया की इस पॉलिसी को सपोर्ट किया था. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज प्रेसिडेंट्स, बट यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ दीज कंट्रीज. जरूरी नहीं है कि आप प्रेसिडेंट्स के नाम याद रखें, बट आपको कंट्रीज के नेम्स तो एटलीस्ट याद करने पड़ेंगे कि इंडिया ने जब इस पॉलिसी को प्रपोज किया था तो वो कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे पहले इंडिया को सपोर्ट किया था इस पॉलिसी के लिए. और दीज 5 कंट्रीज, दैट इज इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड यूगोस्लाविया, ये 5 कंट्रीज नैम के फाउंडर मेंबर्स कहे जाते हैं, बिकॉज ये 5 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इस पॉलिसी को स्टार्टअप किया था. दैट्स व्हाई ऑल दीज 5 कंट्रीज आर बीइंग कंसीडर्ड एज दिस मूवमेंट, दिस पॉलिसी. See, you have given picture of all these 5 presidents of these 5 countries who are the founders of NAM. You have given one info pebble over here that the principles of non-aligned movement and Panchsheel were initiated by पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील कहा जाता है. इसके 5 प्रिंसिपल्स है, इन्हें पंचशील के सिद्धांत भी कहा जाता है. तो दीज आर इनिशिएटेड बाय पंडित नेहरू जी. नाउ विच आर दीज प्रिंसिपल्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न. वी विल डिस्कस. ओके. The first conference of NAM was held in Belgrade, Yugoslavia in September 1961. सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में नैम की सबसे पहली मीटिंग हुई थी, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी. Only 25 countries participated in the first conference. पहली कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. बट नाउ देयर नंबर हैज रीच्ड टू 120. उस टाइम पर सिर्फ 25 कंट्रीज थी दोज हु वर रेडी फॉर द पॉलिसी ऑफ नैम. बट अगर हम आज की बात करें तो मोर देन 120 कंट्रीज आर देयर हु आर रेडी फॉर द पॉलिसी ऑफ नैम, हु आर द पार्ट ऑफ नैम. दोज हु डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर, जो यूएसए और यूएसएसआर का पार्ट नहीं बनना चाहती बट उन दोनों ही ग्रुप से दूर नॉन अलाइंड रहना चाहते हैं. सो दीज आर मोर देन 120 countries.
India was the first country to speak of non-alignment as because this policy was proposed by पंडित नेहरू जी. तो इंडिया ही वो पहली कंट्री है जिसने इस पॉलिसी को स्टार्टअप किया था. The NAM is based on the principles of पंचशील. NAM के 5 प्रिंसिपल्स हैं बनने के या NAM का पार्ट बनने के. अगर कोई भी कंट्री NAM का पार्ट बनना चाहती है तो उसे इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा. Then and then only can be a country can be a part of NAM. तो ये 5 प्रिंसिपल्स क्या है? These principles are also very important. You need to be learn them. Okay. फर्स्ट इज फुल को एग्जिस्टेंस, मतलब कि शांति से साथ रहना, साथ चलना. मीन्स कि जितनी भी कंट्रीज NAM का पार्ट हैं वो कभी एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगी, वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और शांति से काम करेंगे. सेकंड, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. all the countries, all the members should be equal and they work for the benefit of all, not for one. जो भी काम होगा, NAM जो भी वर्क करेगी वो सब मेंबर्स के बेनिफिट के लिए होगा, किसी एक मेंबर के बेनिफिट के लिए नहीं. थर्ड, नॉन अग्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर. एक दूसरे के लिए कोई भी अग्रेशन, कोई भी गुस्सा या कोई भी फाइट या कोई भी जेलसी टाइप चीज नहीं. It should not be there. Okay. Next, non-interference in each other's affairs. कि वो कंट्रीज एक दूसरे के किसी भी अफेयर्स में, किसी भी वर्किंग में, किसी भी रिक्वायरमेंट में, कंडीशन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी. एंड द लास्ट इज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फ्रीडम एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. वो एक दूसरे की फ्रीडम और उनकी जो टेरिटरीज हैं उसे रिस्पेक्ट करेंगे. That means they will not try to overcome the territories of these countries. See, integrity का जो simple meaning होता है वो होता है the state of being whole, entire and undiminished. तो जो कोई भी कंट्री है उसकी जितनी भी टेरिटरीज है, बाउंड्रीज है, उसे चेंज करने का या उसे ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे. कोई भी कंट्रीज एक दूसरे की बाउंड्रीज को पार करने की कोशिश नहीं करेंगे. दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ NAM विच आर ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, जिन्हें पंचशील के प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है. The NAM is the biggest contribution of India to the developing nations, as because जितने भी developing nations थे जो newly free countries थी, they were very poor and very weak. They don't have any option to be joined with the USA or Russia. उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्हें या तो USA के साथ ज्वाइन होना पड़ता या रशिया के साथ. बट दोनों ही कंडीशन में उनकी डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती थी. बट जब इंडिया ने ये पॉलिसी स्टार्टअप की NAM कि किसी के साथ ना जुड़ना, अपना सेपरेट अलग रहना, सो दैट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर सच काइंड ऑफ कंट्रीज. क्योंकि वो तो पहले ही खुद को डेवलप कर रही हैं, वो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं. अगर वो किसी का पार्ट बन जाएंगी तो वो तो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगी. Before the formation of NAM, small and poor countries had almost no voice in UN. NAM की फॉर्मेशन से पहले जो छोटी और पुअर कंट्रीज थी वो UN में कुछ कह ही नहीं पाती थी, बिकॉज दे फील कि वी आर नॉट पावरफुल. हाउ कैन वी स्पीक इन फ्रंट ऑफ दीज पावरफुल कंट्रीज. अगर हम उनके अगेंस्ट कुछ भी कहेंगे सो दे कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अस. तो दे वर इन फियर. So they were not able to speak if they were wrong. But now these countries can raise their voice through the NAM. अब वो NAM एक, because कि NAM now become a very large group. अब वो NAM की help से अपनी voice raise कर सकती है. So that is why it is being said कि UN ने जो NAM की, इंडिया की जो NAM पॉलिसी को सपोर्ट किया वो UN का इंडिया की प्रोग्रेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था.
अगर यूएन ने नैम को सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज इंडिया भी यूएसए या रशिया में से किसी एक ग्रुप का पार्ट होता, बट बिकॉज यूएन ने नैम को सपोर्ट किया, इंडिया इज नाउ अ फ्री एंड डेवलप्ड कंट्री, and it is not the part of USA and USSR. That's why I told you कि ये जो वर्क है यूएन का, that they support the policy of NAM, that is the biggest contribution of UN in the progress of India. So this is your chapter. We have completed this chapter and the syllabus also. uh, Progress milestone we will discuss in the live session. Okay, now take a read and revise the chapter. We will discuss again the chapter in the live session. Okay, till then, bye.